Very good day to all of you, my dears. Now, I hope that all of you are well and fine. As I am going to teach you English, snapshots, that is supplementary book, and chapter 2. In my previous videos, I have taught you the first chapter, the summer of the beautiful white horse. It has been finished, and now let us see the chapter address. As you are well aware about address, I hope आप सभी लोग एड्रेस के बारे में जानते होंगे कि एड्रेस किसे कहते हैं. दैट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनीबडी एल्स by which one can be recognized or known or introduced. And if we have got any address of anybody else in any part of the world, we can easily move to that place. So here the author herself has been presenting that she has been actually searching such address because before the death of author's mother, the author has been instructed Dorling number 46 Marconi Street. Marconi Street is the location and Dorling is the name of the lady, and number, this is the number of the house number. Now here actually the chapter has been giving information about the address, but the real thing is we see the consequence or result of the war, so that it is, you can say, that is the what kind of impact and what is the impact or what is the effect of war over the living beings, especially over the citizens of a nation that suffer from war. So it is through the hardships, through the difficulties, we also come back to settle our life after the war. As you see that here in India, Pakistan always promoting the terrorist activity, and because of it the terrorists now intrude into the border of India. They come stealthily and secretly, they shoot the people, they explode the bombs, they try to destroy the peace and calm environment of the state, especially Jammu and Kashmir. And on the other hand, we see recently, in the present time, China is also increasing a dispute. As we have seen, also our soldiers as well as Chinese soldiers were dead because of the fighting, but not because of the explosive materials, only it was the duel, it was a strike of rods and sticks, it was a fighting, physically fighting. What is the result? When the dead bodies arrived to the related families, the family member was shocked. तो हमेशा ये कहा जा सकता है कि मान लीजिए चाइना है या पाकिस्तान है, इस तरह की चीज़ें ये कर रहा है, तो इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा. अभी in case if the war begins between India and China, everything will be disturbed. There will be emergency will be adopted, just as the lockdown. Greater than that, just like curfew. तो कर्फ्यू जैसा हो जाएगा.
एकदम सब इमरजेंसी में आ जाएगा, सारी सेवाएं लगभग बंद सी रहेंगी। और कितना नुकसान होगा, धन का भी नुकसान होगा, जन का भी नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। कोई भी व्यक्ति चैन से नहीं रह सकता, खास करके द बॉर्डर एरिया, द सिटीजन्स ऑफ बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया के जितने सिटीजन, उनकी लाइफ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आप सपोज करें जैसे सऊदी अरब में, जॉर्डन में, इराक में, ईरान में, खास करके एशियन मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, उसमें हमेशा आईएसआई के द्वारा कुछ न कुछ उत्पात किए जाते हैं, हमेशा बम ब्लास्ट होता है, गोला बारूद चलता है। तो हैव यू इमेजिन्ड एनी अ टाइम हाउ डू द पीपल लिव इन सच chaotic and difficult situation? Are they able to eat properly? Are they able to sleep properly? Are they able to walk freely here and there wherever they want to go? No, everything is banned. So as war never be the solution of anything. वार जो है, युद्ध किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है, किसी प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। बाइलेटरल टॉकिंग, द्विपक्षीय वार्ता, बाइलेटरल टॉकिंग कैन बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब हम आपस में मिल बैठ के बात करते हैं तो समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन रैदर देन वेगिंग वार। युद्ध के स्थान पर यही सबसे बेहतर है। तो ये जो चैप्टर है हमारा प्री वार के बारे में है कि वार के पहले और वार के बाद की स्थिति ये क्या है। हियर द ऑथर हैज बीन डिस्क्राइबिंग अबाउट द एरिया दैट हैज बीन सफरिंग अंडर वार। एक एरिया के बारे में बात कर रही है, एक प्रांत के बारे में बात कर रही है, एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रही है जिस एरिया में युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं। चारों तरफ स्नाइपर्स, स्नाइपर्स मीन्स सीक्रेट शूटर्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से नाउ तो वार किसी भी तरीके से हमें शांति नहीं देता है। अब हम इफ़ वी थिंक अबाउट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दोज आर लिविंग नियर LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो रहते हैं, अगर हम समाचार देखते हैं तो मोस्टली वी सी दैट मोर्टार अटैक्ड बाई मोर्टार, अटैक्ड बाई गोला और बारूद जो भी है। तो किसी का छत दिखाई देता है कि छत में होल हो गया, किसी की दीवार में होल दिखाई देता है, किसी सिविलियन को गोली लग गई है। तो अब बताइए कि वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, क्या सोचते हैं। जब गोली चलती है, कहीं 2 किलोमीटर की दूरी से गोली आ रही है तो किसको लग जा रही है, कोई गारंटी तो है नहीं। तो अब कोई व्यक्ति मार्केट जा रहा है, सब्जी खरीदने जा रहा है, गोली लग गई। कोई अपने नौकरी पर जा रहा है, अपने ऑफिस जा रहा है, गोली लग गई। तो इस तरह की घटनाओं में कब कहाँ क्या कैसे हो, सुबह कोई गया है, शाम तक जब तक घर नहीं आ जाता, देयर बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो इन द सेम वे हियर वी सी इन द स्टोरी दैट द वार इज गोइंग ऑन एंड हियर द ऑथर्स मदर was a very prosperous, very rich lady. She had the collection of silver spoons, silver dish, plates, costly items at her house. And as she has known about the war, she started and she decided to settle all these to a separate and safe place.
काफ़ी दिनों के बाद मिसेस डोरलिंग came to her house and once more they started their relations strong. जब स्ट्रांग रिलेशन हो रहा है, ऐसे में आर्थर की मदर अपने सारे कॉस्टली सामानों को धीरे धीरे इसे देते जा रही है और ये हर बार आती है और मिसेस डोरलिंग हर बार सामानों को अपने घर ले जा करके सेट कर देती हैं। अब स्थिति क्या होती है, जब ये ऑथर अपने स्टडी पॉइंट से जहाँ वो पढ़ती है वहाँ से आती है, तो सी ऑब्जर्व्स द एल्मीराज ऑफ हर हाउस एंड सी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मिसिंग. शी आस्क्स अबाउट हर मदर but she does not speak anything else. Once when she came to her house, when the author came to her house, she has noticed that someone lady who came to her house and her mother was packing all these things and hand over to the lady, that is Mrs. Dorling. And there was a slight introduction occurred between Dorling and the author or the daughter. Now then after there was a conversation between author and her mother. author और उसके मदर में एक कन्वर्सेशन होता है. तो she says that everything will be safe. After the situation was normalized, author's mother was dead. उसकी माँ मर जाती है और काफ़ी दिन बाद सिचुएशन फिर नॉर्मल होता है. तो वह एक बार अपने माँ के बताए हुए एड्रेस पर कि वो हमारी रिलेटिव्स है जो हमारे सामानों को सुरक्षित रखी हुई है. अब चूंकि उसकी माँ तो नहीं है, लेकिन ऑथर अपने सामानों को देखना चाहती है, वापस लेना चाहती है. शी गोज़ टू दिस एड्रेस, बट शी वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी द बिहेवियर ऑफ मिसेस डोरलिंग. मिसेस डोरलिंग डिनाइड हर टू नो. मिसेस डोरलिंग जब उसको देखती हैं तो भयभीत हो जाती हैं और उसे डिनाई कर देती हैं, अस्वीकार कर देती हैं कि मैं आपको नहीं जानती या मैं मिसेस यस को नहीं जानती जो आपकी माँ हैं. पता नहीं कौन है, हमें मालूम नहीं है और हमारे पास अभी वक्त नहीं है, आप जाइए, और दरवाज़ा बंद कर देती. लेकिन दरवाज़ा बंद करने के पहले ऑथर अपने माँ के कार्डिगन को जानती है. येलो कलर का कार्डिगन था. वही कार्डिगन मिसेस डोरलिंग पहने हुए थी और वह अपने माँ के कार्डिगन को देख करके पहचान जाती है कि ये तो मेरे माँ का कार्डिगन है. निश्चित रूप से यही, चूँकि यही एड्रेस भी बताई थी माँ. वो दोबारा वहाँ से तो तुरंत चली जाती. नेक्स्ट सी मेक्स अ नेक्स्ट अराइवल, वो दोबारा आती और उसके बाद फिर डोरलिंग के घर जाती है. मिसेस डोरलिंग वहाँ कुछ नहीं कहती हैं, चूँकि थी नहीं, मिसेस डोरलिंग की लड़की रहती है. वो मिसेस डोरलिंग को, लड़की उसे अंदर बुलाती है. अंदर वो जाती है, बैठती है, देखती है, सारे सामानों को देखती है. बहुत तकलीफ़ होता है, कष्ट होता है उसे. एंड शी ऑब्जर्व्स अदर थिंग्स. शी ऑब्जर्व्स द टेबल क्लॉथ एंड ऑल दीज थिंग्स. कहती है चाय पिलाओगी नहीं, तो तुम्हारे माँ से मिलना है मुझे. यही कहते हुए अचानक जब वह परेशान हो जाती है इन सब सामानों को देख करके, तो अचानक कूद पड़ती है और कहती है कि मेरा समय हो गया और मुझे जाने दो. चूँकि अब ये पुअर हो गई है, इसका परिवार समाप्त हो गया है, इसके सारे सामान समाप्त हो गए हैं. शी हैज़ hired a rented room. She has a very little room to live in, and she thinks that what will be the use of such items, luxurious items that belongs to us. And it was the silver pots and pans, spoons,
some decorative materials were there, everything that is belonging to the same address should be belonged there. Why? Because I haven't enough space to keep all these. Now I suppose that you people yes, please let us come to the book, and I hope that you would have got the clear cut information about the chapter address. Now let us see the book. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war. Belonging. Articles. Things are goods. सामान. Belonging. Now here belongings. Articles, things are goods. सामान होता है कि उसके माँ से बिलोंग करता था, मिला माँ से संबंधित था, उस सामान को खोजने आफ्टर द वार. वेयर? तो हॉलैंड में. मार्कोनी स्ट्रीट कहाँ है? तो हॉलैंड. HO हॉलैंड में वो खोजने गए. वेन सी फाइंड्स देम, जब वो उन सामानों को पाती है, वेन सी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ. देन शी बिकम नोस्टाल्जिक. She becomes nostalgic. Nostalgic यानी कि जिस वक्त वो सामानों को देखती, उस वक्त वो अपने प्रीवियस लाइफ में जाती है. डीप previous memories are events. Deep previous memories are events. हैं? अब ये इतना ज़्यादा होता है कि लोग सोचते सोचते में खो जाते हैं. जैसे कोई भी चीज़ सोच रहे हैं और उसी में खो गए कि भाई भूल गए कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, और कभी कभी उसी अंदाज में बोल भी पड़ते हैं. नाउ हियर व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ. हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन. व्हाई डज शी रिजॉल्व? Resolve means to decide. Resolve means to decide. वो डिसाइड करती है रिटर्न होने की विदाउट एनी अदर थिंग्स. नाउ हियर see the chapter. Do you still know me? Now here at this moment the daughter or the author has gone to Dorling's house. She is at Dorling's house. See, speaker. स्पीकर यानी कि जो यहाँ राइटर की है वही. डॉर्लिंग्स हाउस. आई आस्क्ड, डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड. ये स्पीकर कौन है? जो राइटर है.
फर्स्ट पर्सन में बोलता, फर्स्ट पर्सन, कि मैंने, तुम मुझे जानती हो। अब ये कहाँ है इस वक्त, वो कहाँ है? तो इस वक्त ये स्पीकर जो है वो डोरलिंग के घर पे, इनके दरवाजे पर है। द स्पीकर एज द डोर ऑफ डोरलिंग at Marconi Street. The woman looked at me searchingly, in a searching manner. Searchingly, that is in searching manner, in a questioning manner. Searchingly. She had opened the door a chink, a little. Chink. थोड़ा सा खोलती है, दरवाजे को थोड़ा सा खोलती है। सी चिंक अ लिटिल। आई केम क्लोजर, स्पीकर, आई केम क्लोजर, उसके नज़दीक जाती, एंड स्टूड ऑन दी टॉप, स्टूड ऑन द स्टेप, स्टेप पे मैं खड़ी होती हूँ। नो, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, हु यू आर। मिसेस डोरलिंग सेज टू द गर्ल, सर आई don't know you. The speaker says, I am Mrs. S. daughter. अब देखिए यहाँ राइटर ने अपने माँ का नाम नहीं लिखा, अपने माँ के नेम के लिए उसने मिसेस एस, मिसेस एस, केवल एस वर्ड का यूज किया। अब एस का कहने के लिए एपोस्ट्रोफी एस देना पड़े, मिसेस एस डॉटर, एस की लड़की। नाउ मिसेस एस डॉटर, सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर। अब ये बता रही है, सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, हेल्ड मतलब होल्ड, हेल्ड होल्ड, पकड़े हुए है, दरवाजे को पकड़े हुए, एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। सी प्रिवेंट, सी स्टॉप, प्रिवेंट, सी स्टॉप टू ओपन। अब वो ज़्यादा नहीं खोलना चाहती दरवाज़ा, इसलिए दरवाजे को पकड़ करके खड़ी। शी डज नॉट लाइक टू ओपन द डोर कंप्लीटली, शी हैज़ होल्ड अप द डोर एंड स्टैंडिंग देयर दैट इट विल नॉट बी opened more than these. Her face was absolutely, clearly no sign of recognition. There was no sign of introduction, recognition, introduction. Absolutely, that is truly, clearly. It was not giving any sign of recognition. औरत के माध्यम से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पहचान रही है, कोई साइन नहीं दे रहे, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है कि वो हमको पहचानती है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस एंड शी वॉज स्टिल, शी वॉज साइलेंट, शी वॉज क्वाइट एंड शी वॉज वॉचिंग मी साइलेंटली, लुकिंग मी साइलेंटली। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। अब ये स्पीकर कहती है, ये डॉटर कहती है कि शायद मैंने गलती कर दिया, लगता है मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। आई थिंक दैट आई हैव कम एट द रॉन्ग एड्रेस। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर, इट इज दिस एड्रेस डज नॉट बिलोंग टू मिसेस डोरलिंग, आई सपोज। मैंने उम्मीद किया कि शायद ये एड्रेस हम गलत किसी दूसरे के घर आ गए हैं और ये हमको पहचान नहीं रही हैं। आई हैड सीन हर ओनली। अब ये कह रही है कि वो भी नहीं पहचान रही है या मैं नहीं पहचान रही हूँ, तो क्या है कि मैंने उसे देखा नहीं था। आई हैड सीन हर ओनली वंस, फ्लीटिंगली, फ्लीटिंगली, क्विकली, फ्लीटिंगली, फॉर ए शॉर्ट टाइम। For a very short time, fleetingly I have seen her. बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मैंने उसे देखा था।
and that was years ago. That was years ago, काफ़ी दिन पहले, सालों पहले. It was most probable that I had rung the wrong bell. Actually, I came and switched on the wrong address. मैंने रॉन्ग एड्रेस पे आकर के मैंने उसके कॉल बेल को बजा दिया. लगता है मैं गलत जगह पे आ गया. The woman let go of the door and stepped to the side. Let go of the door, दरवाजे से थोड़ा सा किनारे हुई. Let go of the door and stood at the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. क्या पहने हुए थी? मेरे माँ की कार्डिगन पहने हुए थे. शी वॉज वियरिंग द नीटेड, हाथ से बुना हुआ कार्डिगन. औरतें कार्डिगन पहनती हैं, जैकेट के मॉडल में होता है, तो वो पहने हुए थे. द वुडन बटन्स वर रैदर पेल, येलो कलर में था. फ्रॉम वॉशिंग बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट, कई बार उस कपड़े की धुलाई की वजह से वह येलो हो गया था, पीलापन, बटन पर पीलापन आ गया था. She was that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. Actually, she thought that I have been looking her cardigan, and because the cardigan does not belong to the lady, so she was suspicious and felt doubt that might this girl understand me, who am I. शायद ये मुझे पहचान रही है, इसलिए शी ट्राइड टू हिड हर सेल्फ, वो दरवाजे के पीछे जाने की कोशिश करी, छिपना और चाहिए. दैट आई शुड नॉट हैव द क्लियर व्यू टू हर, बट आई न्यू नाउ दैट वॉज नॉट राइट. आई न्यू दैट आई हैव कम एट द राइट एड्रेस. ओनली द कार्डिगन वॉज द object to find the clear idea and to be assured that she has come at the right address. कार्डिगन ही एक ऐसा हुआ. कभी कभी ऐसा होता है, फिल्मों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि एक छोटी से पॉइंट से लोग पहचान कर जाते हैं कि ये वही चीज़ है. ठीक उसी तरीके से अगर ये फिल्म की शूटिंग की तरह चलता तो शायद कार्डिगन पर वो फ्लैश करता डायरेक्टर, और बार बार वो कार्डिगन को फ्लैश करता, तो जो एक्टर या एक्ट्रेस जो भी है वो रिकॉग्नाइज कर लेता, उससे सिम्टम मालूम होता. जो व्यूअर्स हैं, विजिटर्स हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, वो ये जान जाते कि कार्डिगन इज़ द ऑब्जेक्ट बाय विच द ऑथर कम टू नो दैट शी हैज़ कम एट द राइट एड्रेस. वेल, you know my mother, I asked. You know my mother? I asked. Have you come back? अब देखिए, have you come back ऐसा नहीं है कि वो चली गई और फिर आई. Have you come back मैंने फिर दोबारा पूछी. जब तुमने कहा कि do you know me, तो मैंने कहा नहीं, तो अब क्या? Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. I thought that no one had come back. कोई वापस नहीं आया. Only me. मैं ही तो हूँ और कोई नहीं है, कोई वापस नहीं है. The door opened and closed in the passage behind her. Now as the where the lady was standing behind her, उसके पीछे कोई एक दरवाज़ा खुलता है, उसके पीछे कोई दरवाज़ा खुला, घर में और भी लोग हैं, कोई दरवाज़ा खुला. Behind her, a musty smell emerged. तो एक जैसे कमरा बंद होता है तो उसमें घुसने पर एक अलग स्मेल आती है. द सेम गस्ट ऑफ बैड स्मेल केम थ्रू द पैसेज. पैसेज के माध्यम से वह थोड़ी डंप हवा बाहर आई, तो इसको ये महसूस हुआ कि हाँ कोई रूम खुला है. I regret I cannot do anything for you. I regret, I repent, मैं पश्चाताप करता हूँ, करती हूँ. I cannot do anything for you.
मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। स्पेशली आई हैव कम बाई ट्रेन एंड वॉन्ट टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, कन्वीनियंट, ईजी, CONVENIENT, easy or comfortable. It is not convenient, it is not easy or it is not comfortable to me to talk to you at this right time, at this moment. तब क्या है? It is not convenient. She said the woman, I cannot see you another time. I cannot see you right now, and you have to come at other time, another time. She nodded, that is a symptom of bowing or shaking the head, nodded, and cautiously closed, very carefully closed the door, as though no one inside the house should be disturbed. As no one inside the house should be disturbed. Means others should not know that I have opened and closed the door. The lady that have closed the door very carefully, बड़े सावधानी पूर्वक उसने दरवाजे को बंद किया, और ऐसा इसलिए किया जैसे लगता है कि घर के अंदर दरवाज़ा जब बंद होगा तो घर के अंदर या तो कोई जान जाएगा कि कोई आया है, या फिर अगर कोई सोया है तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो शी डज नॉट लाइक टू बॉदर एनीबडी एल्स एंड शी हैज़ क्लोज द डोर वेरी केयरफुली। नाउ I stood where I was on the step. She was standing there at the same place. The curtain in front of the bay window moved. The curtain in front of the bay means bay window. यही bay window, इस पर मान लीजिए कोई पर्दा लगा हुआ है। तब तक क्या हुआ कि अभी वो वहीं खड़ी है और ये पर्दा थोड़ा सा हटता है, इसे कोई आदमी पर्दा हटा के झांक रहा हो, peeping outside. Someone stared at me, gazed at me, gazed, stared, gazed, ध्यान से देखना, gazed at me, stared at me, and would then have asked what I wanted, and then would have asked, और शायद उसने पूछा कि मैं क्यों आई हूँ या क्या है, हमसे नहीं, अंदर किसी दूसरे से। जैसे वो लेडी रही हो, उस लेडी के साथ कोई और भी रहा हो या रही हो, तो वो जंगले पर आती है, झांकती है, देखती है, और अंदर वाले से आदमी से पूछती है मैंने क्या बात है, वो कौन है, क्या आया है, क्या चाहिए था उसे। नाउ ओ नथिंग, रिस्पांस क्या औरत ने दिया, ओ कुछ नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, नहीं कुछ नहीं। शी हैज जस्ट प्रिटेंडेड, एक बहाना बनाया उसने कि नहीं कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब क्या है, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। अब वो जो घर के सामने एक नेम प्लेट लगा रहता है लोगों के, तो नेम प्लेट देखा तो उस पर लिखा था डोरलिंग, नेम प्लेट पे डोरलिंग लिखा था। इट सेड इन ब्लैक लेटर्स, ब्लैक लेटर में लिखा हुआ था, ऑन वाइट इनेमल, द प्लेट वाज ऑफ वाइट, इट वाज पेंटेड इन वाइट पेंट, द प्लेट वाज गिवन ओवर द वाइट पेंट and the letter used in black letter. On the jamb, jamb means upper part of the door. Jamb, upper part of the door, दरवाजे का ऊपरी हिस्सा, उस पर क्या लिखा था, नंबर 46, उस पर लिखा था नंबर 46।
As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. Now, as she was coming back, as the author was coming back, she was thinking about her mother, that she had given Dorling's address. It had been in the first half of the war. मैंने जब वार के मध्य में, वार चल रहा था उसके बीच में उन्होंने एड्रेस दिया था. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had been changed. तो इसने क्या देखा था? इसने कहा कि when I came for my holiday at my house, I saw some belongings were missing from my house. Then I asked my mother. जब मैंने कुछ सामानों को देखा कि मिसिंग है, तो मैंने अपने माँ से पूछा. I missed various things. बहुत ज़्यादा सामान गायब दिखाई दिए थे. My mother was surprised I should have noticed so quickly. My mother was surprised at my memory, that how much memory I have, that I remembered each and everything, that my house belongs to all these. मेरी माँ मेरे ऊपर आश्चर्य करी कि मैंने क्या, मेरी मेमोरी है कि मैं कुछ भूली नहीं हूँ. Then she told me about Mrs. Dorling. तब उसने डोरलिंग के बारे में बताया था. I had never heard of her, but apparently, clearly, she was an old acquaintance. She was old relatives or known personalities of my mother. कोई दूर की, कोई पहचान की मेरी माँ की कोई थी जिसको मैं नहीं पहले जानती थी. जब मैं अपने माँ से पूछी तभी मुझे जानकारी हुई. Whom she hadn't seen for years. और अपने उस रिश्तेदार से she had not met for many years. बीच में काफ़ी दिनों तक मेरी माँ से और उस रिलेटिव्स का कोई मुलाकात नहीं होता था. But she had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. मैंने वहाँ से आकर के अपना एक दिन आई और अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह, ऐसे दबे हुए रिश्ते को पुनः उसने जगाया. Once more she aroused her relations between them, and then after she started to come regularly. Now, my dears, I would like to finish, and this is the ending of our class. In the next video, we will read about further things that is given in this chapter. Thank you.